हायर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। देती हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। I must have been about 7 when my father left Porbandar for Rajkot to become a member of the Rajasthani court. मैं केवल 7 वर्ष का ही रहा होऊंगा जब मेरे पिता ने राजकोट में राजस्थानिक अदालत का सदस्य बनने के लिए पोरबंदर छोड़ दिया। There I was put to a primary school, and I can well recollect those days, including the names and other particulars of the teachers who taught me. वहाँ मुझे प्राथमिक शाला में दाखिला दिया गया था। मैं उन दिनों को अच्छे से याद कर सकता हूँ, नाम तथा शिक्षकों की अन्य विशेष बातों को जो उन्होंने मुझे पढ़ाया। As at Porbandar, so here there is hardly anything to note about my student. I could only have been a mediocre student. जैसा कि पोरबंदर में और वैसे ही यहाँ मेरी शिक्षा के बारे में शायद ही कोई विशेष टिप्पणी हो जिसे ध्यान दिया जाए। मैं केवल एक साधारण छात्र था। From this school, I went to the suburban school and then to the high school, having already reached my 12th year. इस स्कूल से मैं सबर्बन शहर के बाहर स्थित स्कूल चला और फिर 12 वर्ष की उम्र में हाई स्कूल। I do not remember having ever told a lie during this short period, either to my teachers or to my schoolmates. I used to be very shy and avoided all company. मुझे याद नहीं आता कि इस समय अवधि में मैंने या तो शिक्षकों से या स्कूल के सहपाठियों से कभी कोई झूठ बोला हो। मैं बहुत ही संकुची था तथा सभी साथियों से दूर रहता था। My books and my lesson were my sole companions. To be school at the stroke of the hours and to run back home as soon as the school closed, that was my daily habit. I literally ran back because I could not bear to talk to anybody. I was even afraid lest anyone should poke fun at me. मेरी किताबें और सबक मेरी एकमात्र साथी थे। सही समय पर स्कूल पहुंचना तथा जैसे ही स्कूल बंद हो दौड़कर घर आना, यह मेरी रोज़ाना की आदत थी। मैं सचमुच पीछे भागता था क्योंकि हर किसी से बात करना सहन नहीं कर सकता था। मैं इस बात से भी डरता था कि कहीं कोई मुझ पर मजाक न उड़ा दे। But somehow my eyes fell on a book purchased by my father. It was Shravan Pitra Bhakti Natka, a play about Shravan's devotion to his parents. I read it with intense interest. There came to our place about the same time traveling showman. किंतु किसी तरह मेरी आंखें मेरे पिताजी के द्वारा खरीदी गई एक किताब पर पड़ी। यह श्रवण पितृभक्ति नाटक, एक नाटक श्रवण की अपने माता पिता के लिए त्याग के बारे में था। मैंने इसे अत्यधिक रुचि से लेकर पढ़ा। ठीक उसी समय चलते फिरते नाटक वाले यहाँ हमारी जगह पर आए। One of the pictures I was shown was of Shravan carrying his blind parents on a pilgrimage. The book and the pictures left an indelible impression on my mind. Here is an example for you to copy, I said to myself. एक चलचित्र मैंने देखा था, वह था श्रवण अपने अंधे माता पिता को उठाकर तीर्थ यात्रा पर ले जा रहा था। यह किताब तथा चित्र मेरे मस्तिष्क पर अमिट छाप छोड़ गई। यह तुम्हारे लिए उदाहरण है, नकल करने को मैंने अपने आप से कहा। The agonized lament of the parents over Shravan's death is still fresh in my memory. The melting tune moved me deeply and I played it on the concertina, which my father had bought for me.
श्रवण की मृत्यु पर माता पिता का विलाप आज भी मेरे अंतर्मन में ताज़ा है। पिघलाने वाली आवाज़ ने मुझे अंदर तक प्रभावित किया और मैंने उसे अपने संगीत के यंत्र में बजाया जो कि मेरे माता पिता ने मेरे लिए खरीदा था। There was a similar incident connected with another play. Just about this time, I had secured my father's permission to see a play performed by a certain dramatic company. This play, Harishchandra, captured my heart. ठीक वैसे ही घटना यहाँ एक अन्य नाटक से जुड़ी हुई थी। उसी समय एक नाटक कंपनी द्वारा प्रस्तुत नाटक देखने के लिए मैंने अपने पिता की अनुमति निश्चित कर ली। नाटक हरिश्चंद्र यह मेरे हृदय में घर कर गया। I could never be tired of seeing it, but how often should I be permitted to go? It haunted me, and I must have acted Harishchandra to myself several times. Why should not all be truthful like Harishchandra? Was the question I asked myself day and night. मैं इसे देखते कभी नहीं थकता था, किंतु मैं बार बार जाने की अनुमति कैसे लेता। यह सदा मुझ में साथ था और अनेकों बार अपने आप में मैंने हरिश्चंद्र का अभिनय किया। सब कोई हरिश्चंद्र जैसा सच्चे क्यों नहीं होते, प्रश्न था जो मैं दिन रात अपने आप से पूछता था। To follow truth and to go through all the ordeal Harishchandra went through was the one ideal which inspired in me. I literally believed in the story of Harishchandra. The thought of it all too often made me weep. सत्य का पालन करने तथा हरिश्चंद्र के जीवन में घटित सभी कठिन समस्याओं से गुजरना एक आदर्श था जो मुझे प्रोत्साहित करता था। मैं वास्तव में हरिश्चंद्र की कहानी में विश्वास करता था। इस प्रकार के सभी विचार प्रायः मुझे रुला देते थे। My common sense tells me today that Harishchandra could not have been a historical character. But for me, both Harishchandra and Shravan are living realities, and I am sure I should be touched as before if I were to read again those plays today. मेरी समझ आज मुझसे कहती है कि हरिश्चंद्र कोई ऐतिहासिक चरित्र नहीं था, किंतु मेरे लिए हरिश्चंद्र तथा श्रवण दोनों ही जीवंत सच्चाई है तथा मैं विश्वास करता हूँ यदि मैं आज भी नाटकों को पुनः पढ़ता पहले जैसे मेरे मन को छू लेते। There was another such incident during the time when I was in the 7th standard. Dorabji Idulji Jimmy was the headmaster then. He was popular among the boys. Thought he was a disciplinarian. He was a man of method and a good teacher. यहाँ उसी प्रकार की एक अन्य कहानी है उस समय की जब मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता था। दोराबजी इदुलजी जिमी प्रधान अध्यापक थे। वे छात्रों के बीच लोकप्रिय थे। यद्यपि वे कठोरता से नियम पालन करने वाले थे, यद्यपि वे अनुशासन प्रिय थे। वह एक तकनीकी व्यक्ति थे तथा कुशल अध्यापक थे। He had made gymnastics and cricket compulsory for the boys of the upper standards. I disliked both. I never took part in any exercise, cricket or football, before they were made compulsory. My shyness was one of the reasons for this aloneness, which I now see was wrong. उन्होंने ऊंची कक्षा के छात्रों के लिए जिम्नास्टिक तथा क्रिकेट को अनिवार्य कर दिया था। मुझे दोनों ही पसंद नहीं थे। मैंने उन्हें अनिवार्य करने से पहले कभी किसी व्यायाम, क्रिकेट या फुटबॉल में हिस्सा नहीं लिया। इन सब से अलग रहने का एक कारण मेरा संकोची स्वभाव था जो अब मुझे गलत जान पड़ता था। Today I know that physical training should have as much place in the curriculum as mental training, but thought I was none the worse for having neglected exercise. I am still paying the penalty of another neglect.
आज मैं जानता हूँ कि शारीरिक प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम में उतना ही महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए जितना मानसिक प्रशिक्षण का, किंतु मैं सोचता हूँ मैंने व्यायाम को नज़रअंदाज कर कोई गलती नहीं की। मैं अब भी एक गलती की कीमत चुका रहा हूँ। I do not know from where I got the notice that good handwriting was not a necessary part of education, but I retained it until I went to England. मैं नहीं जानता कि कहाँ से मैंने यह विचार बनाया कि अच्छी लिखावट शिक्षा का आवश्यक अंग नहीं है, किंतु मैंने इसे बनाए रखा जब तक मैं इंग्लैंड नहीं गया। I then saw that bad handwriting should be regarded as a sign of an imperfect education. Let every young man and woman understand that good handwriting is a necessary part of education. तब मैंने देखा कि खराब लिखावट एक अपूर्ण शिक्षा की पहचान मानी जाती है। अतः यह सभी युवक युवतियों को समझना चाहिए कि अच्छी लिखावट शिक्षा का एक अनिवार्य अंग होता है। बेटी